उसमें हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे कैन गिव अस द रिजल्ट्स वेरी क्विकली एंड दे कैन ग्रो वेरी रैपिडली। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि दे कैन ग्रो ऑन सिंपल and inexpensive media, and along with it we talked about some other characteristics which have made them advantageous to study as an model organisms. For example, uh, the DNA replication process and the basic structure of the cell, basic structure of the cell envelope, etc. We have talked about it. So, in continuation of the previous one, actually, when we talk about the domains of the life, these are the three domains: bacteria, archaea, and eukarya. You guys are familiar with the kingdom system classification, and there are 5 kingdoms starting from the Animalia, Plantae, fungi, Monera, protozoans, etc. Uh, but these domains are above the kingdom systems. So the life on Earth that can be categorized into three main domains. One is the bacteria, archaea, which includes the archaeobacteria, and the eukarya, which includes animals, plants, fungi, etc., etc. If we observe bacteria and archaea under the microscope, they are microscopically similar. There are a lot of similarities which are present between bacteria and archaea. लेकिन इसके बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये सिमिलर हैं, because there are a lot of differences which are also reported in the bacteria and archaea. Both of them, they are prokaryotic cells. They have nuclei in their cells instead of a nucleus. But genetically, they are quite different from one and each other. You can say that they are genetically far different. Uh, However, they have some similarities because they are prokaryotic cells. Both of them do not have nucleus, they have nucleide. Okay, here I have a question. What is nucleide? क्या आपका क्या ख्याल है? What is nucleide? Nucleide क्या चीज़ है? Here. सर शायद इनके पास मेम्ब्रेन माउंटेड न्यूक्लियस नहीं होगा और जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो किसी खास स्पेस में डिस्पर्स होगा और स्पेस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं उस रीजन को। Yeah, you are right. That portion in the prokaryotic cells in which the genetic material is present, that is unbound, that is not surrounded by any membrane, this would be termed as a nucleide, this portion. So both of them have the nucleide. So if we talk about bacteria, we can have its some salient features. Well, number one is that bacterial cells are prokaryotes. They are unicellular, yani single cells. Number two is that bacterial cells, they may have some specific shapes, starting from the cylindrical, spherical and spiral. ये तीन चार टाइप्स की इसकी बैक्टीरिया की शेप्स जो हैं they are reported. Bacteria have a rigid cell wall around its structure, around its cell, and this rigid cell wall that it is made up of peptidoglycan. Number four, bacterial cells divide by the process of binary fission, and as a result of binary fission, bacterial cell produce identical sorry. Yeah, as a result of binary fission, bacterial cells produce identical daughter cells, which are identical to the original cells. इसके साथ साथ bacterial cells, they have ability to move into the liquid mediums, and this movement is possible by the presence of the flagella. So these are some basic points which a bacterial cell may have. So if we talk about archaeobacteria, they are same in shape and size as the bacterial cell is. They also multiply by the binary fission, and they produce the identical original daughter cells. But interestingly, in the cellular wall of the archaeobacteria, no peptidoglycan is present. Instead of peptidoglycan, the cell wall of archaeobacteria that is made up of another component. This is named as pseudomurine. Pseudomurine. Uh,
इसके साथ साथ बैक्टीरियल सेल्स जो हैं दे दीज आर्कियल सेल्स दे हैव एबिलिटी टू ग्रो इन द एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स. Extreme environments mean they can grow in the high temperatures, in the high pH, in the low temperatures or in the low pH. एंड इसके साथ साथ अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें कि ये हार्श कंडीशंस कौन सी हैं और कहाँ पे बैक्टीरिया जो हैं ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो दीज हार्श कंडीशंस इन द एक्सट्रीम एनवायरनमेंट इट में इंक्लूड द ग्रेट सॉल्ट लेक और द डेड सी. तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछता होता हूँ कि व्हाट इज डेड सी एंड वेयर इट इज. एनी आइडिया अबाउट इट? डेड सी, व्हाट इज डेड सी एंड वेयर इट इज? प्लीज गूगल ना कीजिएगा, खुद ही बताइएगा पता है तो. सर जहाँ कोई भी जाए वो मर सकता कोई भी जानवर मर सकता है या सारे मर गए हैं? फिर से सोच लें. सर ये डेड सी जॉर्डन के पास है, जॉर्डन जो है ना व्हाई इट इज कॉल्ड डेड सी? सर, इसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए डेड सी कहा जाता है ऐसे. You are right. So this is the Dead Sea, and it has higher concentration of salt. There's no life here present here, but archaeobacteria यहाँ से भी report हुए हैं. It means that this is the environment with the extreme condition, extreme salty condition where life is normally not present, but the archaeobacterial cells, the archaeal cells are also present there. डेड सी के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर डूबता नहीं है कुछ भी. आप अक्सर गूगल अगर करें कुछ वीडियोज और पिक्चर्स आपको मिलेंगी, लोग यहाँ पे इसके ऊपर वो लेटे हैं, तैर रहे हैं, डूब नहीं पा रहे बिकॉज दैट इज रिच्ड इन सॉल्ट. इसके साथ साथ कुछ बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग्स के एग्जांपल हैं. दिस हॉट स्प्रिंग्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. ख़ास तौर पे जो कोल्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे बर्फ़ जैसा कि हमारे यहाँ स्कर्दू है या कुछ और एरियाज़, वहाँ पे ज़मीन में से गर्म चश्मे निकलते हैं विच हैव वेरी हॉट वाटर एंड नॉर्मली दे हैव 100 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. तो यहाँ पे भी इन इस वाटर सैंपल्स के अंदर भी आर्कियो बैक्टीरिया जो हैं दे हैव बीन रिपोर्टेड. इसके साथ साथ कोल्ड वाटर ऑफ अलास्का एंड अंटार्कटिका, यहाँ से भी आर्कियोबैक्टीरिया के सैंपल्स जो हैं वो मिले. तो इट मीन्स दैट आर्कियोबैक्टीरिया दे आर सिमिलर इन शेप एंड साइज बट दे आर वेरी डिफरेंट with respect to their habitat. they may present in extreme conditions, जिनके हमने कुछ एग्जांपल्स अभी डिस्कस किए हैं. इसके साथ साथ आर्कियोबैक्टीरिया की सेल वॉल जो है उसके अंदर भी पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होती जैसे बैक्टीरिया में होती है, इसमें नहीं है. सो दीज आर सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेस विच आर बिटवीन द आर्कियोबैक्टीरिया एंड बिटवीन द बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया. तो इसके अलावा और बहुत सारे टेक्निकल डिफरेंसेस मौजूद हैं, लेकिन चूंकि अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर है हम इसमें जेनेरिक बातें कर रहे हैं. सो हम यहाँ पे इसको ज़रा ब्रीफली ही डिस्कस करेंगे. सो इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट सम नॉमेनक्लेचर, ये नॉमेनक्लेचर का प्रोसेस है. You have been gone through it in detail in first year actually, I think. Yeah. Whenever we write a scientific name, this would consist of two parts. One part that would be the generic name or the name of genus, and the second part that would be the specific name. So generic name will always start with the capital letter, and the specific name would start with the small letter. बोथ वर्ड्स जो हैं दोनों को हम अटैलिसाइज करते हैं इफ़ वी आर राइटिंग इन द प्रिंटेड फॉर्म और टाइप राइटिंग राइटेड फॉर्म. बट इफ़ वी राइट विद द हैंड रिटन फॉर्म में अगर लिखें तो फिर हम इन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं. तो याद रखिएगा जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखेंगे हाथ से और उसको इस तरह से नीचे अंडरलाइन नहीं करेंगे तो दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द कंप्लीट नेम. साइंटिफिक नोटेशन में आपने हमेशा इसको सेपरेटली दोनों नामों को अंडरलाइन करना है अगर हाथ से लिख रहे हैं. अगर आप टाइप कर रहे हैं तो इसको अटैलिक्स करना है. इसके साथ साथ एक और टर्म इस्तेमाल होगी हमारे यहाँ, अभी हम इस बुक में मज़ीद जब चीज़ें पढ़ेंगे तो एक कुछ जगहों पे आप लिखा हुआ देखेंगे इकोलाई स्ट्रेन बी. तो ये इकोलाई, ई इज़ स्कर्शिया, दिस इज़ जीनस, कोलाई इज़ स्पेशी, और ये स्ट्रेन बी.
तो मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि आप लोगों को स्पीशी का भी पता है, जीनस का भी पता है, तो ये स्ट्रेन क्या चीज़ है? STRAIN, व्हाट इज दैट स्ट्रेन? कोई बता सकता है? स्ट्रेन, व्हाट इज सर स्ट्रेन? जो इवॉल्व कर जाते हैं ना कोई बैक्टीरियाज वगैरह, ओरिजिनल फॉर्म से डिफरेंट फॉर्म बना देते हैं इवॉल्व करके, तो वो उनके डिफरेंट स्ट्रेन्स बन जाते हैं। तो अगर वो डिफरेंट हो जाते हैं तो फिर हम उनको डिफरेंट स्पीशी क्यों नहीं कहते? सर कुछ जीन थोड़ा उनके सा डिफरेंट चेंज आता है ना, बस पूरा थोड़ी आएगा वो जेनेटिक मटेरियल में, बस थोड़ा बहुत चेंज आएगा कि उनका मोड शायद डिफरेंट हो जाए अटैक का। लाइक अच्छा, कोविड-19 के जितने ज्यादा स्ट्रेन्स है, तो वो इसी वजह से ना वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व कर रहा है, उनके डिफरेंट स्ट्रेन्स आई जा रहे हैं। okay, you are right. So here I will sum up this. Species, there is a uh, group of bacteria, the group of cells which share some similar characteristics. और अब अगर ऐसा है कि किसी स्ट्रेन में कोई म्यूटेशन आ गई है या किसी सेल में कोई म्यूटेशन आ गई है, तो नाउ इट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड टाइप मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी। अब डिफरेंट इतना है कि इतना है सिर्फ कि हम उसको एक अलग ऑर्गेनिज्म कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन इतना डिफरेंट नहीं है कि हम उसको किसी सेपरेट स्पीशी में रख सकें। तो इस वजह से वी वुड नेम द टर्म स्ट्रेन हियर। हम कहेंगे कि ये इकोलाई है लेकिन उसकी स्ट्रेन बी है। बाज़ औक़ात यहाँ पे अगर बी लिखा है तो बी की बजाय यहाँ पे कुछ और लिखा होता है। बाज़ औक़ात लिखा होता है स्ट्रेन 0157, स्ट्रेन O157। तो ये कुछ डिजिट्स होते हैं जो ये बता रहे होते हैं कि इस स्ट्रेन की जीन्स में या इसके न्यूक्लिक एसिड में किस पोजीशन पे चेंजेस आई हैं। इसी तरह कोरोना के केस में कोरोना की एक स्ट्रेन रिपोर्ट हुई, अब जो केसेस आ रहे हैं पाकिस्तान में, नाउ दे आर ऑफ द म्यूटेटेड फॉर्म। कुछ महीने पहले यूके में एक कोरोना की जो फॉर्म रिपोर्ट हुई थी, वो फॉर्म ज़्यादा इन्फेक्शियस फॉर्म है और आजकल पाकिस्तान में भी वही केसेस सामने आ रहे हैं। इसी वजह से दोबारा से लॉकडाउन लगा है क्योंकि दैट फॉर्म इज़ मोर इन्फेक्शियस फॉर्म। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं उस स्ट्रेन की अगर हम नाम लें, हम इसको नॉर्मली कहते हैं यूके बेस्ड म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ कोरोना। तो उसके अगर हम डिटेल में जाएं तो दिस इज एक्चुअली नाउ टर्म्ड एज कोविड स्ट्रेन B1.1.7। तो एक्चुअली ये स्ट्रेन, ये जो आगे हमने डिजिट लगाया या कोडिंग की, ये मैं ये बता रही है कि इस स्ट्रेन में किस पोजीशन पे कौन सा पोर्शन जो है वो म्यूटेट हुआ है। तो एक्चुअली स्ट्रेन इज the member of same species, but this is not exactly like the wild type. This is a bit mutated. So I just want to clear your point. Yes, होशिया, आप कुछ पूछना चाहती हैं? सर आपने कहा कि बैक्टीरिया हमेशा रिप्रोड्यूस करेंगे बाइनरी फिशन से और उसके बाद जो आएगी उनकी जनरेशन वो आइडेंटिकल होगी। सर फिर ये स्ट्रेन्स क्यों बन रही हैं? मतलब सर वो तो बाइनरी फिशन से कर रहे हैं मल्टीप्लाई। हाँ, उसमें ऐसा है कि बैक्टीरिया के साथ बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल हैज़ एबिलिटी टू अपटेक द नेकेड डीएनए फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से अपटेक करता है, उसको अपने डीएनए में इनकारपोरेट कर लेता है। जब उसने इनकारपोरेट कर लिया तो अब वो एग्जैक्टली वाइल्ड टाइप स्ट्रेन नहीं रह गया। इसी तरह कॉन्जुगेशन होती है, दो बैक्टीरियल स्ट्रेन है, एक स्ट्रेन ए है एक बी है, इनमें से कोई इंसेस्टर डिसेंडेंट का रिलेशन नहीं है, एक स्ट्रेन ए है बी है। स्ट्रेन ए अपना जेनेटिक मेकअप जो है वो बी में ट्रांसफर कर सकता है। दिस इज कॉल्ड द कॉन्जुगेशन, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म और वन लाइव बैक्टीरिया टू द अदर। इसके साथ साथ तीसरा प्रोसेस ट्रांसडक्शन का है। उसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरियल स्ट्रेन पे बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरस अटैक करता है, उस पर ग्रो करता है, लिटिक साइकिल चलता है और लिटिक साइकिल चलने के बाद वायरस जब बाहर निकलता है तो होस्ट का कुछ डीएनए का पोर्शन अपने साथ ले आता है। फिर जब यही वायरस किसी नए बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो पिछले होस्ट का डीएनए नए बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर देता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। तो दीज आर सम वेज which are modifying
the bacterial genetic makeup. Is that clear? Yes, sir. Okay. So अगर हम मज़ीद आगे चलें थोड़ा सा इसी चैप्टर में, तो we have this chart. अभी तक हमने पढ़ा क्या कि माइक्रोबियल वर्ल्ड जो है that can be categorized into living and non-living parts. Non-living are considered as the infectious agents, but they are not considered as the living. For example, virus, virides and the prions, हमने इसके पढ़ लिया. दूसरा जो लिविंग पार्ट है उसमें हम 3 कैटेगरीज में से माइक्रोबियल वर्ल्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. वन इज फ्रॉम बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया. आर्किया जो है और बैक्टीरिया दे आर प्रोकैरियोट्स, but definitely eukarya they are eukaryotic in nature, and they may include some algal cells as a unicellular microscopic, protozoans कुछ unicellular, fungi unicellular fungi, and along with it some helminthes which are multicellular parasites. They may be considered in this category. So protozoans और algae को हम in combination कहेंगे protist. Fungi का unicellular part that would also fall in the microbiological word, जैसा कि yeast है वो unicellular है लेकिन है fungi. तो इस तरह से microbiological word जो है it would form from different domains. So this was about it. इसके बाद अगर हम आगे मूव करते हैं तो ये वायरसेस और विराइड का डिफरेंस जो कि हमने पहले बड़ा ब्रीफ सा देखा था, अब अगर इसको आज फिर से देखें तो वायरसेस के बारे में वी आर श्योर अबाउट इट नाउ कि they are obligate intracellular parasites. When we use the term obligate, it means that they definitely require the host. They cannot survive without the host. So you know that virus require the host for the reproduction. If there is no host, virus cannot survive because ये reproduce नहीं कर पाएंगे. इसी तरह से वायरस की दूसरी डेफिनेशन ये है कि they consist of a nucleic acid. Nucleic acid DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, and this DNA और RNA that is surrounded by a protein coat. अगर अब विराइड की बात करें तो विराइड is also considered as obligate intracellular agent, but it does not have any surrounded protein. और दूसरा जो विराइड का न्यूक्लियाइड है, this also consists of on RNA. इसमें DNA भी मौजूद नहीं होता. No protein coat, no DNA. This is viride. और normally virides are the parasites of the plant cells. Plant cells को affect करता है. इसके साथ साथ अगर prions देखते हैं हम, prions are not itself the agents. They are actually the abnormal form of a cellular protein. For example, a protein that is present in the cell that got an abnormal form. आपको पता है कि जब प्रोटीन बनती है डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन में जब प्रोटीन बनती है तो प्रोटीन सिंथेसिस के बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती हैं जो प्रोटीन को फोल्ड, रीफोल्ड, क्वाइलिंग एंड सुपर क्वाइलिंग करके प्रोटीन को एक्टिव और फंक्शनल फॉर्म में लेके आती हैं. बट इफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन एन abnormal फॉर्म, it may have some side effects. For example, हमने देखा है कि ये prions जो हैं they have been reported in different diseases, जैसा कि cow mad disease थी. तो आप कह सकते हैं कि prions they consist only on proteins. They do not have DNA or RNA. बच्चे this is very bad. Don't mark the lines on screen. अभी वर्दा खान मेरा ख्याल है उनका नाम अभी रो रहा था. गलती से हो गया सर. चलें सही है. वैसे मैं उसमें एनोटेशन डिसेबल कर देता हूँ ताकि हाँ, अगर आप disable. लोगों का हाथ वगैरह लगे तो ना हो इस पे. ओके, सो डिफरेंस बिटवीन वायरसेस, विराइड्स एंड प्रियॉन्स, ये बड़ा ब्रीफ सा डिफरेंस है जो कि आपको क्लियर होना चाहिए. इसके साथ साथ ये एक और टेबल है. दिस इज जस्ट टू शो यू द डिफरेंस between difference between the sizes of agents. For example, if we talk about the virus, they are the tiniest and the smallest. And if we want to visualize and to observe the virus, we have to use the electron microscope, because without electron microscope, we are unable to visualize the viruses. Viruses are थोड़े बड़े mycoplasma.
माइकोप्लाज्मा एक्चुअली ये बैक्टीरिया है, लेकिन इनके बारे में हम कहते हैं कि these are the smallest non-bacteria. They do not have cell wall. These mycoplasma, they do not have cell wall. They are the smallest non-bacteria. They can be observed with the light microscope somehow. They are called prokaryotic cells. इनसे बड़े हैं E. coli, Escherichia coli. And Escherichia coli, that is the most common bacteria, and that is mostly used in the genetic engineering and different metabolic engineering techniques and in molecular biology. So Escherichia coli is most famous. Escherichia coli के बाद थोड़े से जो मजीद बड़े सेल्स हैं प्रोकैरियोट्स ही, बैक्टीरिया ही, they are termed as Bacillus megaterium. अब देखें ये काफ़ी लार्ज साइज के हैं एज कम्पेयर टू Escherichia coli. उसके बाद बारी आती है यूकैरियोटिक सेल की, जैसा कि यीस्ट है. यीस्ट इज लार्जर देन Bacillus megaterium, Escherichia coli, और यीस्ट इनसे कई गुना बड़ा है. क्यों? क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है, एंड यू नो दैट यूकैरियोटिक सेल मस्ट हैव द सेल ऑर्गेनेल्स. इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, गोल्गी apparatus भी होंगे, वगैरह वगैरह. तो जब ये सब चीज़ें मौजूद होंगी सेल के अंदर, तो सेल का साइज डेफिनेटली बड़ा होगा. So that's why eukaryotic cell is larger as compared to prokaryotes. इसके साथ साथ हम देखते हैं जो adult roundworms helminthes हैं, they are larger. They are larger as compared to the yeast, and they are because most of them they are multicellular. So ये बड़े हैं. अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वायरस हम देखते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप से हम देख पाते हैं माइकोप्लाज्मा, इकोलाई, बैसिलस मेगाटेरियम, यीस्ट सेल्स एटसेट्रा. एंड यीस्ट सेल के बाद हमारे पास बारी आती है, हम नेकेड आई से हेलमेंथस या बड़े ऑर्गेनिज्म जो है उसको देख सकते हैं. सो दिस इज जस्ट द फॉर योर इमेजिनेशन to have an idea about different sizes of the members of the microscopic world. So this was all about the first chapter that we have completed. Up to this point, if you guys have any question, you may ask. Any questions? No question? No, sir. Good. So the next chapter that we are going to start today, that is about the microscopic structure and the microscopic techniques. इसका नाम है जी microscopy and cell structure. So this chapter is from the Nestor book जो आपके पास है, और उसका chapter number 3 है ये, which we are going to start today. When we talk about the microscopy and some cell structure, तो इस चैप्टर में हमारे पास बेसिकली 3 पार्ट्स हैं इस चैप्टर के. वन इज अबाउट द माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, के डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इन आवर रिसर्च पर्पस, या माइक्रोस्कोप को कैसे यूज करना है, किस माइक्रोस्कोप का क्या प्रिंसिपल है, और किस माइक्रोस्कोप की क्या लिमिटेशंस है माइक्रोस्कोपिक टेक्निक. तो फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का ये है. दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि हम डिफरेंट माइक्रोबियल सेल्स को स्टेन किस तरह से करते हैं, स्टेनिंग, कलर, हम कलर किस तरह से देंगे, बिकॉज कलर देना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है इस पर भी बात करेंगे, और हम कलर देते कैसे हैं इस पर भी बात करेंगे. तो सेकंड पार्ट ये होगा. जो थर्ड पार्ट होगा इस चैप्टर का, दैट वुड बी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर क्या है, सेलुलर वॉल है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई, तो उसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है, उसका स्ट्रक्चर वेरिएशंस क्या है. अगर इसके अलावा हमारे पास सेलुलर मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोट की, तो ये किस तरह से डिफरेंट है दूसरी सेलुलर मेम्ब्रेन से, वगैरह वगैरह. तो दैट विल बी द थर्ड पार्ट. इसके साथ साथ हम थोड़ा सा इसमें ये देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, चूँकि ये माइक्रोबायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी द माइक्रोबायोलॉजी विदाउट द माइक्रोस्कोप. सो हियर I would suggest you to be very attentive in this part, because बहुत सारी माइक्रोस्कोप्स की टेक्निक्स ऐसी होंगी जो कि हम आपको लैब में नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है या फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप्स हैं जो कि बहुत कॉस्टली हैं, कुछ बिलियंस में उनकी प्राइस है. तो इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 4 हैं या 5 हैं टोटल. तो इनका बेसिक प्रिंसिपल आपको उनसे फेमिलियरिटी होनी चाहिए
ताकि अब आप अगर एमएस में या पीएचडी में किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाते हैं और आपको मिलता है देखने को इन माइक्रोस्कोप्स पे काम करने को, तो आपको बेसिक प्रिंसिपल पता हो। इसके अलावा कुछ माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स जैसा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या लाइट माइक्रोस्कोप है, दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर लैब। एंड दुआ है कि लॉकडाउन लिफ्ट अप हो, हालात बेहतर हों और आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करें। तो जब आप लैब में जाएं तो माइक्रोस्कोप्स को खुद से ऑपरेट करना सीखिएगा, हाथ से चला के देखें, चीज़ें ख़राब ना करें लेकिन चीज़ें हाथ से ऑपरेट करके देखें। यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद द ऑपरेशन ऑफ ऑल दीज ऑपरेटर्स, ताकि आपको अपनी लैब टेक्निक्स पे अबूर हो। अगर नहीं होगा तो आप प्रॉब्लम में आएंगे कल जब आप फील्ड में जाएंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे या जॉब के लिए जाएंगे, तो यू मस्ट हैव अ प्रॉब्लम। टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए इंसान को। So starting with the microscopic technique part, microscope is an instrument. This is considered as instrument because you know that prokaryotic cells are very small. They cannot be visualized without the help of microscope. ये इनका इतना छोटा साइज है, लेकिन अगर हम देखें तो they are of small size but their surface area is larger as compared to their size. And due to their small size, they are vulnerable to a threat of different extreme conditions and different enemies, जैसा कि एक दूसरे के साथ एंटीबायोटिक इश्यूज हैं। तो इस वजह से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं दे आर कंसिडर्ड वेरी स्मॉल और इनको हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख पाएंगे। सो माइक्रोस्कोप में सबसे पहले जो हमारे पास टेक्निक आती है, दिस इज़ द ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। दिस इज़ वेरी कॉमन इन लैब्स, हमारी लैब में भी पढ़ी है आप लोगों ने। आई होप कि एफएससी में भी इनको इस्तेमाल किया होगा। यस एहतिशाम, यू वांट टू आस्क समथिंग? जी भाई साहब। मैं हॉस्पिटल में हूँ, बाबा मेरे इधर एडमिट हैं, तो अच्छा जिस वजह से हम बाहर के बैठे डेड होने वाले हैं, तो अभी 5% आ गया तो लीव हो जाएगा। अच्छा, ओके ठीक है एहतिशाम, ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फादर। ओके, लाइट माइक्रोस्कोप जो है, लाइट माइक्रोस्कोप एक्चुअली या दिस इज वेरी कॉमन इन लैब्स। इसका प्रिंसिपल थोड़ा सा बात करते हैं। मैं पहले आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ, आप इससे फेमिलियर हैं। दिस माइक्रोस्कोप, अच्छा जो आपकी लैब एक्सपेरिमेंट है उनमें पहला एक्सपेरिमेंट जो है लैब मैनुअल में, वो भी माइक्रोस्कोप से रिलेटेड ही है। उसमें आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप और ये चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन जो इस टॉपिक में जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसमें हम अदर देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप दूसरी टेक्निक्स की भी बात करेंगे। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दिस इज कॉल्ड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और द लाइट माइक्रोस्कोप। इसको लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं कि इसमें नीचे यहाँ पे लाइट सोर्स है ये वाला, और ये जो लाइट सोर्स है एक्चुअली दिस लाइट सोर्स इल्यूमिनेट्स आवर सैंपल, ये वाला लाइट सोर्स है नीचे। इसके बाद इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उन पार्ट्स में हमारे पास ये एक स्टेज है, दिस इज कॉल्ड स्टेज। इस स्टेज पे हम अपना स्पेसिमन या सैंपल रखते हैं जो कि नॉर्मली ग्लास स्लाइड के ऊपर होता है, इसके ऊपर रखते हैं। फिर इसके बाद ये ऊपर लेंसेज हैं, ये 4 लेंसेज हैं, 1 2 3 4। दिस लेंसेज आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंसेज एंड ये लेंसेज डिफरेंट कैपेसिटी के, डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर के होते हैं, अभी उसकी भी डिटेल बताता हूँ। उसके बाद ऊपर जाएं तो हमारे पास ये दीज आर द आक्यूलर लेंसेज एंड दे आर कंसिडर्ड एज आई पीसेस, आक्यूलर लेंसेज। अब ये इस माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज, आक्यूलर लेंसेज एंड द ऑब्जेक्टिव लेंसेज। इसके साथ यहाँ पे मजीद एक कंडेंसर या एक लेंस आप कह लें होता है, विच इज देयर टू कंडेंस द लाइट एंड टू स्प्रेड द लाइट। हम इसको चेंज करके लाइट को पिन पॉइंट फोकस कर सकते हैं, तो ये लाइट को थोड़ा स्प्रेड भी कर सकते हैं। लाइट कहाँ से आ रही है? ये नीचे लाइट का सोर्स है, यहाँ से आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे नॉब है, ये एक नॉब है, दिस वन। ये नॉब क्या करती है कि ये इस स्टेज की पोजीशन को ऊपर नीचे करती है। हमने स्टेज के ऊपर स्लाइड रख दी, ऊपर लेंस है। आपने फिजिक्स पढ़ी है एंड यू आर फेमिलियर विद इट कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर लेंस से देखना है तो उसका लेंस से डिस्टेंस मैटर करता है। तो हम इस नॉब को मूव करके, स्टेज को ऊपर नीचे करके इसको लेंस के करीब या दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसी नॉब के अंदर एक छोटी नॉब है, ये वाली,
दिस वन। अब ये जो बड़ी नॉब है ये स्टेज को ज़रा तेज़ी से मूव करती है। जो स्मॉलर नॉब है इट मूव्स द स्टेज विद वेरी स्लो पेस। हम इस छोटी नॉब को मूव करेंगे तो स्टेज बहुत स्लोली मूव करेगा। हम क्या करते हैं कि आकुलर लेंस से देखते जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट को और नॉब को मूव करते जाते हैं। तो जहाँ पे हमें इमेज एग्जैक्ट क्लियर आता है नज़र, हम वहाँ पे नॉब को स्टॉप कर देते हैं। सो दिस इज द एक्चुअली फंक्शन, these are the parts of the microscope. इसके साथ साथ एक नॉब यहाँ पे है, ये वाली नॉब इधर है। ये लाइट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा करती है, लाइट को डिम करेगी, लाइट को ब्राइटन करेगी। लाइट जितना आपको अपने सैम्पल के मुताबिक अगर लाइट डिम करनी है तो आप इस नॉब को मूव कर, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह फ़ैन की स्पीड एक नॉब से डिम और तेज़ की जाती है घरों में भी, और आपने नॉर्मल देखा है। जो ये नॉब ये काम करती है, लाइट की स्पीड कम ज़्यादा करती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आपको डिफरेंट पार्ट्स की समझ आ गई है? जी सर। यस सर। ओके, अब इसकी मज़ीद डिटेल में जाते हैं। ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसमें लाइट सोर्स है जो कि स्पेसिमेन यस को सर। इनलाइटन करता है और जिसके रिजल्ट में हम अपने स्पेसिमेन को मैग्नीफाई करके देखते हैं, इनलार्ज करके देखते हैं। जब भी माइक्रोस्कोप की इन जनरल बात होगी तो उसकी माइक्रोस्कोप में दो पावर्स होती हैं, दो प्रॉपर्टीज होती हैं माइक्रोस्कोप। वन इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन पावर and number two that is called the resolution power. Magnification power क्या होती है? Magnification power is the ability of microorganism to enlarge any object. कि अगर आपने उसके नीचे एक बैक्टीरियल सेल को या किसी और सेल को देख रहे हैं तो ये माइक्रोस्कोप आपको कितने गुना बड़ा करके उस सेल को दिखा रही है। दिस इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप, दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। दूसरी एबिलिटी होती है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब है कि ये माइक्रोस्कोप कितना क्लियर दिखा रही है आपको, हाउ क्लियरली इट कैन विजुअलाइज, या दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि अगर यहाँ पे ओके मैंने यहाँ पे दो लाइनें ड्रॉ की हैं स्क्रीन पे, जो कि अभी हमें एक लाइन ही लग रही है यहाँ पे। मैं अगर इसको इनलार्ज करता हूँ फॉर एग्जांपल, unfortunately I am not able to enlarge it. Anyways, so resolution is actually the ability of microscope to clearly separate the two coexisting subjects. मिसाल के तौर पे अगर हम कोई दो पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं पेज पे और हम उनको आंख से देखते हैं तो वो दो पॉइंट्स जो हैं वो हमें सेपरेट नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम उस पेज को थोड़ा आंख से दूर करें तो हमें वो पॉइंट्स जो हैं वो एक पॉइंट नज़र आ रहा होता है। फिर क्या होता है कि अगर पेज पे एक पॉइंट लगा है और उसको हम लेंस के थ्रू देखते हैं तो वो हमें मल्टीपल पॉइंट्स उसमें से नज़र आ रहे होते हैं। तो जो ह्यूमन आई है उसकी रेजोल्यूशन पावर काफ़ी कम है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो 1 मिलीमीटर से छोटे होंगे या करीब होंगे, सॉरी 0.1 मिलीमीटर, तो कोई से भी दो ऑब्जेक्ट जो 0.1 मिलीमीटर से करीब होंगे वो हमें एक ही पॉइंट नज़र आएंगे नेकेड आई से। लेकिन जब हम उसको लेंसेज के थ्रू देखेंगे तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि रेजोल्यूशन इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू क्लियरली सेपरेट द को-एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स। ये दो चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं। अभी हम सिर्फ बात करने लगे हैं वापस मैग्नीफिकेशन पे। तो मैग्नीफिकेशन क्या था? दिस वाज द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू एनलार्ज एनी ऑब्जेक्ट। तो किसी भी माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन पावर है इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास एक तरीका है, दो लेंसेज। अब आपने ये देखी है लाइट माइक्रोस्कोप, इसमें दो लेंसेज हैं, एक ये नीचे है इसको हम कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस वन, और जो ऊपर है इसको हम कह रहे हैं आईपीस या ऑकुलर लेंस। अब हम करते क्या है कि हम दोनों लेंसेज की डिफरेंट पावर्स हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस की डिफरेंट पावर्स आती हैं, 4x आती है, 10x आती है, 40x आती है, 100x आती है। यहाँ पे आप देखें तो ये चार लेंसेज नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4। एक 4x का होता है, एक 10x का होता है, एक 40x का होता है, एक 100x का होता है।
हमें जो भी लेंस मूव करना है, यूज़ करना है, हम इसको घुमाते हैं, मूव करते हैं और वो लेंस यहाँ पे सामने ले आते हैं और उसको यूज़ करते हैं। और दूसरा ऑकुलर लेंस है। ऑकुलर लेंस की हमारे पास एक ही पावर होती है, नॉर्मली नॉर्मली एक ही पावर होती है, लेकिन कभी-कभी इसमें सेकंड पावर आती है। एक पावर जो है वो 10x, ये नॉर्मली ऑकुलर लेंस जो है 10x का होता है। कभी-कभी इसमें 20x आता है। तो अगर हमने मैग्नीफिकेशन पावर कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऑकुलर लेंस की पावर से। फॉर एग्जांपल, आप एक स्पेसिमेन देख रहे हैं और उसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर 10x यूज़ कर रहे हैं। तो आप इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100x के 10x के साथ। ये 10x ऑकुलर लेंस का है। तो हमारे पास आएगा आंसर 100x। तो ये 100x दैट वुड बी एक्चुअली द मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप, या आप यूँ कह सकते हैं कि ये अब 100 टाइम्स बड़ा करके दिखा रही है आपको वो ऑब्जेक्ट जो आप इसके नीचे देख रहे हैं। इसी तरह से 40x वाला अगर लेंस आप यूज़ कर रहे हैं तो आप 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये 400x ऑप्शन आंसर आएगा। 100x अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x आएगा। So you can say that in case of the bright field microscope, which is very commonly used in our labs, the maximum magnification is 1000 times. We are able to visualize the object 1000 times enlarged. अगर हमारे पास ऑकुलर लेंस की पावर 20x हो और यहाँ पे 100x का ऑब्जेक्टिव लेंस हो, तो उस केस में मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन जो है वो 2000x हो सकती है, लेकिन वो इतना कॉमन नहीं है, इतना नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट करते हैं, एंड दिस इज एक्चुअली हाउ वी कैन enlarge the object by using the microscope. Up to this point, if there is any question, you may ask. एक्सक्यूज मी सर, हायर मैग्निफिकेशन आपने कितनी बताई है? मैक्सिमम 1000 है नॉर्मली, लेकिन अगर हमारे पास ऑकुलर लेंस 20x का हो तो 2000x तक हो सकती है। एनी अदर क्वेश्चन? जी सर इससे तो हमने मैग्निफिकेशन कैलकुलेट किया ना कि कितनी उसकी मैग्निफिकेशन पावर होगी। हाँ तो हाँ सर रेजोल्यूशन फाइंड करने का भी कोई मेथड है या वैसे ही ये रेजोल्यूशन होगी हाँ, माइक्रोस्कोप की? रेजोल्यूशन का ये, या इस अगली स्लाइड यही आ रही है, इस पे बात करेंगे अभी मैग्नीफिकेशन तक। ओके जी, मैग्नीफिकेशन तक जो हमने पढ़ा है वो मसला मसाइल को बात समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ ऐड करना चाहते हो, आपके पास इंफॉर्मेशन हो? Okay, no information, no question, so everything is clear, I suppose, and we move next. The second power, or the second property of a microscope, that is resolving power. और जब हमने पीछे देखा है कि मैग्नीफिकेशन पावर जो है it depends upon the power of objective lens and ocular lenses. जो resolving power है it depends upon the quality and type of lens जो कि हम यूज कर रहे हैं। अगर हम लेंस की टाइप और क्वालिटी को बेहतर कर लें तो रिजॉल्विंग पावर जो है ये बेहतर हो सकती है। इसके साथ साथ वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जो हम नीचे लाइट सोर्स यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ भी डिपेंड करती है कि व्हाट काइंड ऑफ वेवलेंथ वी आर यूजिंग। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर यूजिंग वाइट लाइट एंड वाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, उस केस में हमारे पास रेजोल्यूशन पावर डिफरेंट होगी। अगर हम कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज कर रहे हैं तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन रेजोल्यूशन डिफरेंट होगी। इसके साथ साथ रिजॉल्विंग पावर आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीफिकेशन पावर। डेफिनेटली जब हम किसी हाई मैग्नीफिकेशन के लेंस से देख रहे होंगे तो हमें चीज़ बहुत क्लियर नज़र आएगी और हम ऑलरेडी रिजॉल्व कर पाएंगे। तो दिस इज द रेजोल्यूशन। तो इट मीन्स दैट रेजोल्यूशन एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीफिकेशन ऑल्सो। उसके साथ साथ हम मज़ीद देखते हैं कि द स्पेसिमन जो हमने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा है, उस स्पेसिमन की प्रिपरेशन
जब हम माइक्रोस्कोप के लिए स्पेसिमेन प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो बड़े स्पेसिफिक प्रिपरेशन मेथड्स हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी वुड बी डिस्कसिंग दैट मेथड्स। तो इट आल्सो डिपेंड्स कि how we prepare the specimen. If specimen is not well prepared, it means that we are compromising our resolution. तो जब आप देखेंगे, आप जब लैब में ग्राम स्टेनिंग करेंगे या इस तरह की स्टेनिंग प्रोसीजर आप हाथ से परफॉर्म करके देखेंगे तो एक्चुअली आप स्पेसिमेन प्रिपेयर कर रहे होंगे माइक्रोस्कोपी के लिए। तो अगर किसी की ग्राम स्टेनिंग ठीक नहीं हुई या स्पेसिमेन सही से प्रिपेयर नहीं हुआ तो क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं हो पाएगी, बिकॉज रिजॉल्विंग पावर इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिमेन प्रिपरेशन, द मैग्निफिकेशन पावर, the wavelength of light, quality and type of lens. Okay, so these are a few points which are affecting the resolution, the resolving power of a microscope. हमने देखा कि ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन थी दैट वाज 0.1 मिलीमीटर। जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसकी रेजोल्यूशन पावर है 0.2 माइक्रोन मीटर, ठीक है। और ये रेजोल्यूशन पावर इनफ है प्रोकैरियोटिक सेल की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए। बट इफ वी नीड टू स्टडी द वायरसेस and more tiny particles, in that case we cannot use the light microscope, we would prefer the electron microscope. इसके साथ साथ जो जो हमारे पास रेजोल्यूशन पावर है किसी भी माइक्रोस्कोप की, अभी हम याद रखिएगा बात कर रहे हैं लाइट माइक्रोस्कोप्स की सिर्फ। तो लाइट माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर है इसको इंक्रीज किया जा सकता है बाय यूजिंग द ऑयल इमर्जन टेक्निक। अब ये ऑयल इमर्जन टेक्निक क्या है, इसके लिए मैं पहले आपको थोड़ा मजीद इसका सिनेरियो बताता हूँ। ये एक लेआउट है आपके सामने। इस लेआउट ये माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस का लेआउट है। इसमें अगर आप देखें तो ये ऊपर वाला सारा ये ऑब्जेक्टिव लेंस बनाया हुआ है, ये नीचे ग्लास स्लाइड बनाई हुई है जिस पे आपका स्पेसिमन है और उसके नीचे लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स से लाइट ओमिट होती है, हवा में से गुजरती है और आती है स्लाइड पे। स्लाइड एक ग्लास मटेरियल है, स्लाइड में से लाइट पास करके दोबारा एयर में आएगी और एयर के बाद ऊपर आता है ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड यू नो दैट व्हेन लाइट एंटर्स इनटू डिफरेंट मीडियम्स फ्रॉम स्लाइड्स टू फ्रॉम ग्लास टू एयर, लाइट रेज बेंड होती हैं जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। एज ए रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट बीम में बी स्कैटर्ड, और ये स्कैटर्ड बीम जो है व्हेन एवर दिस वुड बी डिस्पर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इस केस में कि जब ग्लास स्लाइड में से लाइट एयर में एंटर हुई है तो ये स्कैटर हो गई है ये बीम, और हमारे पास अल्टीमेटली कम लाइट एंटर हुई है ऑब्जेक्टिव लेंस में। तो इसकी वजह से हमारी रेजोल्यूशन पावर कंप्रोमाइज हो गई। क्यों? क्योंकि प्रॉपर उसके जो सिग्नल्स हैं वही नहीं मिल रहे। अब अगर हम कुछ ये काम करें कि यहाँ पे जो दरमियान में एयर है इसको ख़त्म कर दें और एयर की बजाय यहाँ पे कोई ऐसा मीडियम डाल दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिमिलर हो एज कंपेयर टू द ग्लास। यानी कि यहाँ पे देखें अगर लाइट सोर्स एंटर हो ग्लास में, उसके बाद एयर की जगह कुछ और मीडियम ऐड हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, तो लाइट रेज क्या करेंगी? रिफ्रैक्ट नहीं करेंगी, स्कैटर नहीं होंगी। तो वी यूज़ द ऑयल इमर्जन, ऑयल ड्रॉप हियर। ये बिल्कुल इसी तरह से है, अगर मैं आपको यूं दिखा सकूं, ये वाला ग्लास। अब इस ग्लास में अगर आप देखें तो नीचे पानी वाटर फिल्ड है और ऊपर खाली है। जब हम एक पेंसिल इसके अंदर डिप करते हैं तो हम पेंसिल हमें ब्रोकन या स्कैटर्ड नज़र आती है। वो क्यों? क्योंकि जो लाइट सोर्स हमारी आंख तक पहुंच रहा है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का डिफरेंट है और जो ऊपर एयर है उसका डिफरेंट है। इसी वजह से हमें दो डिफरेंट इमेजेस नज़र आते हैं जो जिसकी वजह से हमारी रेजोल्यूशन, आंख की रेजोल्यूशन मुतासर हो रही है। तो इसी वजह से अगर आप ये ऊपर वाला पोर्शन जो खाली है इसमें या वाटर या ऑयल फिल कर दें या कोई ऐसी चीज़ फिल कर दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाटर के रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स के सिमिलर हो, तो ये पेंसिल हमें बिल्कुल सीधी नज़र आएगी। इसी तरह से हम इसमें ऑयल इमर्जन यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑयल इमर्जन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सिमिलर है इन दिस केस। तो ग्लास से सिमिलर है, सो दैट्स वाई जो लाइट रिफ्रैक्शन है वो नहीं होती और हम रेजोल्यूशन को इम्प्रूव कर सकते हैं।
here in this example I just wanted to explain this phenomena. यही बात यहाँ पे है कि we use oil immersion technique to avoid the bending of the light rays. और क्यों? क्योंकि oil जो है उसकी nearly same refractive index है as that was in the glass. और that's it. Up to this point, if there is any question, you may ask. एक्सक्यूज मी सर, ये जो ऑयल है हमने एयर स्पेस की जगह ऑयल फिल किया, तो ये मतलब हम ग्लास के ऊपर ऑयल फिलिंग कर रहे हैं ताकि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट ना हो। हाँ, हमारे पास ग्लास स्लाइड थी। ग्लास स्लाइड के ऊपर हमने रखी सॉरी, ग्लास स्लाइड के ऊपर हम रखते हैं कवर स्लिप। कवर स्लिप तो देखिए ना आपने लैब में, छोटी सी होती है। कवर स्लिप रखते हैं और कवर स्लिप के ऊपर हम डाल देते हैं ऑयल ड्रॉप, और फिर ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये इस ऑयल ड्रॉप को आके टच करता है। तो अब दरमियान से एयर गायब हो गई है। डायरेक्टली ग्लास, ग्लास के बाद ऑयल, ऑयल के बाद लेंस। ओके जी सर। एक्सक्यूज मी सर, हम्म सर आपने कहा है जब हम ऑयल के ड्रॉप्स डालेंगे तो वो रिफ्लेक्शन कम होगी या नहीं होगी, लेकिन इस डायग्राम में तो रिफ्लेक्शन हो रही है ना अच्छा, लाइट की। अच्छा दो बातें याद रखिएगा। एक ये रिफ्लेक्शन नहीं है, एल नहीं है, ये रिफ्रैक्शन है, REFRACTION, रिफ्रैक्शन है। यस रिफ्लेक्शन, सर, रिफ्लेक्शन एक डिफरेंट चीज है, ये रिफ्रैक्शन है। तो अब अगर आप इसमें देखें तो इसमें रिफ्रैक्शन ये एयर वाले पोर्शन में आपको नजर आ रही है कि लाइट रे स्कैटर होके लेंस से बाहर जा रही है, इतनी स्कैटर हो गई है कि लेंस के अंदर ही कैप्चर नहीं हो पा रही। तो दिस इज द रिफ्रैक्शन जो कि अनवांटेड है। ये जो रिफ्रैक्शन है डेफिनेटली ये लाइट स्प्रेड कर रही है, लाइट सोर्स से आ रही है और स्प्रेड कर रही है। दिस इज नॉट द रिफ्रैक्शन हियर। अगर आप इस एयर वाले पोर्शन में देखें तो जो लाइंस हैं वो टेढ़ी हैं जो कि रिफ्रैक्शन शो कर रही हैं, लेकिन ऑयल वाले में यहाँ से लाइन बिल्कुल सीधी है, ये रिफ्रैक्शन नहीं है। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके जी, चलें। ये कुछ दो डायग्राम्स हैं जो कि सेम मैग्नीफिकेशन पावर पे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लाइट माइक्रोस्कोप की है 450x पे, और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की है 450x पे। सेम स्पेसिमन, सेम मैग्नीफिकेशन पावर, लेकिन इसमें से क्लियर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाली है। इट मींस दैट कि ये आपको सिर्फ डिफरेंस दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन रेजोल्यूशन का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन फार अवे बेटर है एज कंपेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। सेम स्पेसिमन लेकिन क्लैरिटी देखें। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हो क्या रहा है कि वी आर नॉट यूजिंग एनी लाइट सोर्स, वी आर यूजिंग एक्चुअली द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे मेक द रेजोल्यूशन फार अवे बेटर एज कंपेयर टू द लाइट सोर्स। कोई स्कैटरिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारे पास रेजोल्यूशन बहुत क्लियर है। अच्छा ओके जी, तो दिस वाज अबाउट इट, रेजोल्यूशन एंड द मैग्नीफिकेशन। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मज़ीद इसको देखते हैं इस टॉपिक में। अब मसला ये है कि व्हेन एवर वी विजुलाइज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंडर द माइक्रोस्कोप। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इटसेल्फ तो कोई कलर है नहीं। जब हम इसको ग्लास की स्लाइड पे रख के या वाटर ड्रॉपलेट में रख के इसको देखते हैं तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू विजुलाइज द और टू आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिकॉज उनके बैकग्राउंड का भी वही कलर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इटसेल्फ कोई कलर नहीं है। तो इस वजह से आइडेंटिफिकेशन बड़ी मुश्किल है। सो इट इज़ रिक्वायर्ड इफ़ वी कैन यूज़ सम स्टेनिंग टेक्निक्स कि हम या तो बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दें या हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कोई ख़ास कलर दे दें कि वो हमें बैकग्राउंड से डिफरेंट नज़र आए। So these are the staining techniques that can be used to create the contrast. अब नॉर्मली क्या होता है कि जब हम स्टेनिंग करते हैं या हम स्टेनिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, they are very harsh. They can kill the microorganisms. इसी वजह से जब आप माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप ऑर्गेनिजम्स या अपने स्पेसिमन देखते हैं, दे आर नॉट लाइव, दे आर डेड। तो हम डेड सैंपल्स देख रहे होते हैं। लाइव ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं होती, लाइट माइक्रोस्कोप भी यूज़ नहीं होगी। देन देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप, आगे पढ़ेंगे हम।
तो इसी वजह से या तो ये है कि हम स्टेनिंग करें ताकि बैकग्राउंड का कलर डिफरेंट आए, या हम ये करें कि कोई डिफरेंट लाइट सोर्सेज यूज़ करें जो कि इटसेल्फ बैकग्राउंड को डिफर करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि हमारे पास आइडेंटिफिकेशन एंड विजुअलाइजेशन जो है वो क्लियर नजर आए। अब एक इसमें एग्जांपल है द फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। एज इट्स नेम इज इंडिकेटिंग, दिस वुड बी क्रिएटिंग द फेज कंट्रास्ट। होगा क्या कि दैट वुड जब लाइट इसमें से पास करेगी तो जो डार्कर या जो डेंस मटेरियल है जो आपके स्पेसिमन में, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो हमें माइक्रोस्कोप में ज़्यादा डार्क नज़र आएंगे, और वो ऐसे पार्ट जिनकी डेंसिटी कम है दे वुड लुक मोर लाइटर। तो जैसे लाइट पास करती है सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स में से, तो लाइट स्प्रेड करती है, रिफ्रैक्ट करती है डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस एंड डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखें। इस डायग्राम के अंदर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज द क्लोरेला। ये क्लोरेला है और इसके साथ पैरामीशियम बुर्सेरिया है। दे आर प्रेजेंट इन द एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब आगे इसमें अगर आप देखें तो कुछ पोर्शन हमें डार्क नजर आ रहा है, जैसे ये ग्रीनिश एरिया है, ये डार्क नजर आ रहा है, दिस वन। और जो दरमियान में या साइडों पे हमें लाइटर नजर आ रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि ये साइडों पे ये हमारे पास क्लोरोफिल है विच इज डेंसर, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। जब लाइट इसमें से पास की, ये हमें डार्क नज़र आना शुरू हो गया और बाकी पोर्शन वो लाइट नज़र आ रहा है। बैकग्राउंड का कलर हमने डिफरेंट कर लिया। नाउ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई क्लियरली the microorganism, its different portions. So this is the example of the phase contrast microscopy, which is creating the contrast based on the density of the material. Okay, is that clear? सर ये कलर खुद ही देता है, मतलब जो भी कंपोनेंट्स हैं हमारे स्पेसिमेन के? हाँ, दिस इज गुड क्वेश्चन। नॉर्मली जो माइक्रोस्कोपी के रिजल्ट में हमारे पास पिक्चर जनरेट होती है वो ब्लैक एंड वाइट होती है। तो उसमें ये आता है कि ये ब्लैक पोर्शन है या लाइट पोर्शन। फिर डिफरेंट इन माइक्रोस्कोप्स के साथ कंप्यूटर सिस्टम्स अटैच्ड होते हैं जिनमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि फिर डिफरेंट कलर देते हैं। अब चूंकि ये क्लोरेला था, क्लोरेला में क्लोरोफिल है, ये फोटोसिंथेटिक होता है, ये क्लोरोफिल है, तो ये इस डार्कर पोर्शन को सॉफ्टवेयर ने ग्रीन कलर दिया और अब हम इसको ग्रीन देख रहे हैं। नॉर्मली ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर जनरेट होती हैं, ठीक है। फिर उसकी मॉडिफिकेशन की जाती है। एनी क्वेश्चंस? सर फिर ये मतलब जो ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ पोर्शन डार्क ब्लैक नजर आएगा, कुछ लाइट, इस तरह से होगा सर? हाँ बिल्कुल इस तरह से, कुछ डार्क ब्लैक कुछ लाइट ब्लैक नजर आएगा हमें। हमें ओके डार्क सर। और लाइट का क्लियर डिफरेंस नजर आता रहेगा उसमें फिर। एक्सक्यूज ओके मी सर, जी। सर जो आपने स्टेनिंग का बताया था उसमें मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब किस वजह से हो जाते हैं स्टेनिंग करने से? अभी आप देखेंगे कि जब आप ग्राम स्टेनिंग करेंगे लैब में या हम पढ़ेंगे उसको, तो ग्राम स्टेनिंग के लिए हम समेयर बनाते हैं। समेयर बनाने का मतलब होता है कि ग्लास स्लाइड ली है, उसके ऊपर एक पानी का ड्रॉप डाला है, फिर आपके पास जो बैक्टीरिया का सैंपल था उसको लेके उस पानी के ड्रॉप में मिक्स किया है और फिर उस पानी के ड्रॉप को ड्राई होने दिया। ड्राई होने के बाद उसको फ्लेम के ऊपर से पास किया ताकि वो फिक्स हो जाए अच्छी तरह ग्लास स्लाइड के ऊपर। अब आपने फिक्सेशन करनी थी, फिक्सेशन के लिए आपने फ्लेम हीटिंग का प्रोसेस यूज़ किया। वो फ्लेम हीटिंग जो है वो बैक्टीरिया को किल कर देगी। इसके अलावा कुछ स्टेनिंग केमिकल्स ऐसे हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देंगे। तो डिफरेंट एग्जांपल्स में डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं, ठीक है। जी सर। चलें, गुड। सो एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर स्टेनिंग में वो जब हम फिक्सिंग करेंगे तब किल होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? इस एग्जाम्पल में तब हो रहा है, लेकिन देर आर सर्टन टेक्निक्स इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी किल्ड व्हेन इट इज एक्सपोज्ड बाय द स्टेन। अगर स्टेन के अंदर केमिकल्स ऐसे हैं, क्योंकि स्टेन इज अ केमिकल ना, स्टेन के अंदर केमिकल ऐसे हैं विच हैव एबिलिटी टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उस केस में वी कैन नॉट
we cannot visualize the live bacteria. They may have been killed. ठीक है? Okay, sir. Okay, good. Any other questions you want to ask? Okay, no questions. So we will move next, and this is about the interference microscope. Interference microscope is a type of microscope which make it possible to visualize the specimen in three-dimensional image. Or you can say, in other words, it would create a three-dimensional image. This is called interference. अब इंटरफेरेंस जो है माइक्रोस्कोपी, इसके अंदर हम लाइट बीम यूज करते हैं और इसके साथ साथ हम एक डिवाइस यूज करते हैं जो कि इस लाइट बीम को दो बीम्स में स्प्रेड करती है. अब लाइट सोर्स था, लाइट बीम थी, नाउ इट हैज बीन स्प्रेडेड इनटू टू बीम्स. अब ये जो दो बीम हमारे पास हैं, ये स्पेसिमन पे स्पेसिमन को एक्सपोज करेंगी और उसके बाद स्पेसिमन की डेंसिटी और स्पेसिमन के एजेस की बेस पे ये दोनों बीम्स जब सॉफ्टवेयर में जाके कंबाइन होंगी तो दे वुड बी क्रिएटिंग अ थ्री डायमेंशनल इमेज. हियर अगर आप ये एग्जांपल देखें तो इसमें आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये थ्री डायमेंशनल नजर आ रहा है, थोड़ा उभरा हुआ नजर आ रहा है. एंड दिस इज एन एग्जांपल हियर. और इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप की, बड़ी एक मॉडिफाइड फॉर्म है. दिस इज कॉल्ड नोमास्की डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप. दिस इज कॉल्ड DIC माइक्रोस्कोप. और इसमें एक डिवाइस हम यूज करते हैं जो कि लाइट बीम को टू में सेपरेट करती है और फिर स्पेसिमन में से गुजरने के बाद लाइट बीम कंबाइन होती है, सॉफ्टवेयर में इसकी प्रोसेसिंग होती है और हमें जो इमेज नजर आती है वो थ्री डायमेंशनल आती है. तो एक्सक्यूज अगर आप मी इस सर, इसका प्रिंसिपल एक दफा दोबारा से बता दें हाँ कि बताता हूँ. किस तरह से रिफ्रैक्ट हो रहा है. हाँ, लाइट सोर्स है और लाइट सोर्स ने लाइट एमिट की, उसके बाद लाइट एक डिवाइस में से पास करेगी. अब वो जो डिवाइस है एक्चुअली दैट वुड कन्वर्ट द लाइट इनटू टू बीम्स, टू सेपरेट बीम्स में डिवाइड कर देगी. अब वो दो सेपरेट बीम्स सेपरेटली हमारे स्पेसिमन पे लग जाएंगी, उसको एनलाइटन करेंगी और स्पेसिमन में से पास थ्रू करने के बाद कंबाइन हो जाएंगी दोनों बीम्स. अब उनके कम्बिनेशन का पैटर्न, उनके सेपरेशन का पैटर्न सॉफ्टवेयर में एनालाइज होगा और उस कम्बिनेशन और सेपरेशन पैटर्न की बेस पे सॉफ्टवेयर जो इमेज जनरेट करेगा वो थ्री डायमेंशनल इमेज जनरेट करेगा हमारे पास, जिसमें सैंपल की ग्रूव्स एंड हाइट्स की बेस पे हमारे पास एक इमेज, एक क्वाइट फाइन इमेज जनरेट होगा. और जैसा कि इस एग्जांपल में अगर आप देखें, ये एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ दिस वन, ये एक प्रोटोजोन है which is in ये प्रोटोजोन है which is in attached form with the green alga. ये green alga है, इसके साथ attached form में है. तो ये दोनों हमें 3D नजर आ रहे हैं, थोड़े उभरे हुए नजर आ रहे हैं. So in 3D way we can analyze them quite better, or it can be visualized or understood in DIC माइक्रोस्कोप. और इसमें जो हमारे पास इसका जो प्रिंसिपल है, बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंसेस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and the separation of the light beams, and we also need the software help to generate the three-dimensional structure from microscope. इन माइक्रोस्कोप्स के ऊपर नॉर्मली लेंसेज नहीं होते, साथ कंप्यूटर स्क्रीन अटैच होती हैं जो हमें कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर पूरी डिटेल्स शो कर रही होती हैं. दिस वाज ऑल अबाउट इट. यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोग इफ कुछ पूछना चाहते हैं, या आप लोग को लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ ऐड करना चाहते हैं, या अगर आपको लगता है कि आप में मज़ीद पढ़ने की कैपेसिटी नहीं है तो वो भी बता सकते हैं आप ओपनली. एक्सक्यूज मी सर, ये जो हमने माइक्रोस्कोप की टाइप्स पढ़ी हैं, इंटरफेरेंस और जो आगे भी आपने बताई हैं, तो मतलब जनरली तो हम कहते हैं कि दो हैं, कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन. तो ये मतलब लाइट माइक्रोस्कोप की कैटेगरीज हैं या फिर ये अलग से माइक्रोस्कोप्स हैं? नहीं नहीं नहीं, आप एक तो अपना पॉइंट क्लियर करें, ये दो नहीं है. देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स. फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप,
फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, डिफरेंशियल माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी आगे से 2 टाइप्स हैं। तो बेसिकली माइक्रोस्कोप्स आर नॉट cannot be categorized into 2 classes only. There are a lot of types. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, बट डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रॉन की बीम यूज नहीं कर रहे, इसमें हम यूज कर रहे हैं लाइट बीम। ठीक हो गया जी? जी ओके, सर, थैंक यू। any other इसमें question? जी सर इंटरफेयर माइक्रोस्कोप का पूछना है कि जब उसमें से लाइट एमिट होगी लाइट सोर्स में, तो वो रिफ्रैक्ट या दोनों डायरेक्शन में स्प्रेड किस वजह से हो रही है? मीडियम के चेंज होने की वजह से या कोई ऐसी चीज होगी? नहीं, मीडियम के चेंज होने की वजह से नहीं है। अगर मीडियम के चेंज होने की वजह से होगी तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। ये बेसिकली हमने एक डिवाइस ऐड की है उसमें ऑलरेडी, जो कि उसको लाइट सोर्स में मौजूद डिफरेंट वेवलेंथ की बेस पे लाइट को सेपरेट कर रही है। तो वो हम खुद से आर्टिफिशियल डिवाइस हमने की है जो कि वेवलेंथ की बेस पे लाइट सोर्स को या बीम को 2 में सेपरेट कर रही है, और अल्टीमेटली हम उसको अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, जी सर। एनी अदर क्वेश्चन? चलें, कोई क्वेश्चन नहीं है तो थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द नहीं टाइम सर, बाय द वे? हाँ, आगे पढ़ने में नहीं फटाफट। नहीं सर, सर ये काफी है सर। सर आज के लिए काफी है। टाइम हुआ क्या है ये तो बताएं। सर 12:10 हो गया। 12:10 ओह, ओके, चलें, वी डू नॉट हैव टाइम टू स्टार्ट अ न्यू पार्ट, तो इसी वजह से हम इसको यहीं पे बंद करते हैं। और लाइबा, दिस सीम्स बैड, मुझे पता है मैंने अटेंडेंस लगानी है,